بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب چینل شمیر BKW وائس کے معزز دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ رحیم کی بیوی نے نکرانی کے ساتھ ایک قسم کی دوستی یا رازداری پیدا کر لی تھی۔ یہ میں جانتا تھا کہ یہ دوستی اس نکرانی نے پیدا کی ہوگی۔ بہرحال اس دوستی سے مجھے اب یہ فائدہ ہو رہا تھا کہ کچھ اور باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک بات تو یہ تھی کہ مقتول رحیم کی بیوی کے ساتھ غلط مراسم قائم کرنا چاہتا تھا اور بیوی بہت ہی پریشان تھی، اور کبھی کبھی نکرانی کے ساتھ بات کرتے اس کے آنسو نکل آتے تھے۔ نکرانی نے ایک اور بات سنائی جس نے مجھے سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بات اس طرح ہوئی کہ میں نے نکرانی سے پوچھا کہ رحیم کی مزاجی کیفیت کیسی رہتی ہے۔ ایک خاص خیال کے تحت میں رحیم کے غصے کے متعلق کچھ معلوم کرنا چاہتا تھا۔ نکرانی نے بتایا کہ غصہ اسے کبھی کبھی آتا تھا، اور جب غصہ آتا تھا تو پھر اس پر قابو پانا مشکل ہو جاتا تھا۔ نکرانی نے ذرا ہنستے ہوئے بتایا کہ 2-3 مہینے پہلے وہ ان کے کمروں کی صفائی کر رہی تھی۔ رحیم وہیں موجود تھا۔ پڑوسیوں کی ایک مرغی کسی طرح فصیل پر پہنچ گئی اور وہاں سے ادھر اتر آئی اور رحیم کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں اس نے بیٹ کر دی۔ نکرانی نے غصے سے کہا کہ مرغی نے کیا گند ڈال دیا ہے۔ رحیم نے دیکھا تو دروازہ بند کر لیا اور مرغی کو پکڑ لیا۔ وہیں مرغی کی گردن ایسی دبائی کہ مرغی مر گئی اور رحیم اسے پہلو والی گلی میں پھینک آیا۔ اس کے بعد میں نے بہت سوچا اور 10 نمبری بدماش کو اندر بلا کر بیان لینا ضروری نہ سمجھا۔ نکرانی کو باہر بھیج دیا تو یہ 10 نمبریہ خود ہی اندر آ گیا اور مجھ سے سلام دعا کی اور پوچھا کہ حضور ہمارے لیے کوئی خدمت ہو تو ہم حاضر ہیں۔ میں نے اسے فارغ کر دیا اور وہ نکرانی کو ساتھ لے کر چلا گیا۔ گھڑی دیکھی، رات کے 10 بج چکے تھے۔ سارا دن تفتیش میں گزر گیا تھا۔ اب رحیم کی بیوی کو بلانا ضروری ہو گیا تھا، لیکن رات کے اس وقت بلانا مناسب نہ سمجھا۔ اگلی صبح تک ملتوی کر دیا۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ صبح جب میں تھانے میں آؤں تو رحیم کی بیوی یہاں موجود ہو۔ قتل کی رات کی بات۔ میں صبح اس وقت تھانے پہنچا جب سورج طلوع ہو رہا تھا۔ یہ قتل کا کیس تھا جس کی تفتیش کو چند منٹوں کے لیے بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ رحیم کی بیوی آ گئی تھی۔ مقتول کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ میں دونوں کو دفتر میں لے گیا اور مقتول کے باپ کو تسلی دے کر باہر بھیج دیا اور رحیم کی بیوی کو اپنے سامنے بٹھا لیا۔ نوعمر اور بھولی بھالی لڑکی تھی۔ چہرے پر معصومیت بڑی نمایاں نظر آتی تھی۔ شکل و صورت تو بہت ہی اچھی تھی۔ وہ ڈری ڈری سی لگتی تھی جو قدرتی بات تھی۔ میں نے حسب عادت اس کے ذہن اور دل سے یہ ڈر اتارنے کے لیے بہت کچھ کہا۔ میرے لہجے اور انداز میں شفقت بڑی نمایاں تھی۔ میں نے بات شروع کی تو اس نے میری پوری بات سنے بغیر التجا کے لہجے میں کہا کہ اس کے منہ سے کوئی راز کی بات نکل جائے تو میں اللہ کے واسطے کسی کو پتہ نہ چلنے دوں۔ اس نے صاف الفاظ میں کہا کہ وہ غریب گھر کی لڑکی ہے اور سسرال بہت امیر لوگ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ذرا سی بات پر گھر سے نکال باہر کریں۔ میرے دل میں پہلے ہی اس کی ہمدردی پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے اسے بڑے پیار سے یقین دلایا کہ میں اس کی ہر بات پردے میں رکھوں گا۔ اس نے بات شروع تو کر دی، لیکن میں نے دیکھا کہ رک رک کر بولتی تھی اور ڈرتی تھی کہ کوئی ایسی ویسی بات زبان پر نہ آ جائے۔ چونکہ مجھے اس کے متعلق اور اس کے سسرال گھر کی ساری باتیں معلوم ہو چکی تھیں، اس لیے میں نے اسے لقمے دینے شروع کر دیے اور وہ بولتی گئی۔ پھر میں نے اسے بتا دیا کہ مجھے سارے حالات معلوم ہیں۔ مثال کے طور پر اسے 2 باتیں بتائیں تو اس کے چہرے پر کچھ سکون نظر آنے لگا۔ اس نے تصدیق کر دی کہ اس کا خامند اس احساس سے محروم ہے کہ وہ خامند ہے اور یہ لڑکی اس کی بیوی ہے۔ البتہ وہ پیار اور محبت کو سمجھتا تھا۔ اس لڑکی کو میں اصلی نام کی بجائے نسرین لکھوں گا۔ ایک تو نسرین بات کرتے ڈرتی تھی، اس لیے رک رک کر بولتی تھی۔ دوسرے، میں نے محسوس کر لیا کہ یہ زیادہ بولنے والی لڑکی ہے ہی نہیں۔ میں اس کے بیان کو بھی طول نہیں دوں گا، کیونکہ اس نے اپنی شادی پھر ازدواجی زندگی کے متعلق جو بیان دیا وہ بالکل ان بیانات کی تصدیق تھی جو میں مختلف افراد کی زبانی پیش کر چکا ہوں۔ میری حوصلہ افزائی سے اس نے ذرا روانی سے بولنا شروع کر دیا۔ مختصراً یوں کہ ان تینوں بہنوں سے ان کا باپ بہت ہی پیار کرتا تھا۔ باپ کی غربت اور مجبوری کی بات تو پہلے سنائی ہے۔ نسرین نے کہا
کہ उसने अपने प्यारे और मुअज़्ज़ज़ बाप के लिए ये कुर्बानी दी कि एक पागल खामद को कबूल कर लिया, और अभी तक उसने अपने दिल में भी शिकायत पैदा नहीं की कि उसके साथ जुल्म हुआ है। बाप का कर्ज अदा हो गया और वो एक बेटी के फ़र्ज से फारिग हो गया, तो यही खुशी नसरीन के लिए बहुत थी। इस मासूम लड़की ने मुझे बयान देते हुए कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है। अगर लोग कहते हैं कि उसे बाप ने बेच डाला है तो कहते रहें। नसरीन के ये अल्फाज मुझे आज भी इतनी मुद्दत के बाद तक याद हैं। अगर मैंने कोई गुनाह किया है या भूले भटके कोई गुनाह हो गया है तो इस शादी को इस गुनाह की सज़ा समझकर कबूल करती हूँ, और अगर ये मेरी नेकी है कि एक पागल और प्यार के प्यासे खामद को प्यार और सुकून दे रही हूँ तो इसे मैं अपनी किसी नेकी का अजर समझती हूँ। अगर यही नेकी है तो अल्लाह मुझे और अजर देगा। नसरीन सौम सलात की पाबंद थी। मकतूल की माँ को अच्छी तरह समझ गई थी कि इस औरत की फितरत में फितना फसाद भरा हुआ है, लेकिन नसरीन सिर्फ इसलिए उसकी हर बात मानती थी और उसकी खिदमत करती थी कि उसका अपना ठिकाना बना रहे। वो देख रही थी कि मकतूल की बीवी के साथ उस औरत का रवैया क्या है। नसरीन इस इंतहाई बुरे रवैये से डरती सास को खुश रखती थी। नसरीन शायद 4-5 जमातें ही पढ़ी थी, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी समझ लेती थी जो बाज़ तालीम याफ्ता लोग भी नहीं समझते या समझना ही नहीं चाहते। वो जान गई थी कि रहीम प्यार का प्यासा है। इतनी छोटी उम्र में माँ की ममता से महरूम हुआ और सुतीली माँ की बेरुखी और फिर बुरे सलूक का शिकार हो गया, और उसकी जहनी खराबी की वजह यह थी। नसरीन रहीम के लिए सरापे प्यार बन गई थी। वो हर नमाज के बाद रहीम की जहनी सेहत याबी की दुआ मांगती थी और रात को कुछ वज़ाइफ पढ़कर रहीम के जिस्म पर फूंके मारती थी। मैं चौंके नसरीन के साथ शफकत से पेश आ रहा था, इसलिए उसने ऐसी बातें भी सुना डाली जिनका तफ्तीश के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। मैंने उसे रोका टोका नहीं। मुझे तवक्को थी कि राज की कोई ना कोई बात इसी रवानी में उसके मुंह से निकल जाएगी। मैं उसे ऐसे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात पर ले आया कि उसे महसूस ही ना हो सका कि मैं उसके जहन पर काबिज हो गया हूँ। इस रवानी में उसने बताया कि रहीम रात को दूसरे कमरे में सोया करता था। ये नसरीन की दानिशमंदी थी कि उसने रहीम पर कभी जबर नहीं किया था कि दोनों एक ही कमरे में सोएं। हर 8-10 रोज़ बाद नसरीन प्यार और मोहब्बत के ज़रिए रहीम को रात अपने पास सुलाने में कामयाब हो जाती थी, लेकिन रहीम मियाँ बीवी के ताल्लुकात से बेगाना था। मैंने नसरीन को याद दिलाया कि 2 मरतबा मकतूल उसके कमरे में गया था और अचानक रहीम आ गया था। नसरीन ने इसकी तस्दीक कर दी। मकतूल रहीम को देखकर कमरे से निकल गया तो रहीम ने कहा था कि ये फिर यहाँ आया तो मैं इसका गला दबा दूंगा। इसी रवानी में बड़ी मासूमियत और भूलपन के साथ नसरीन ने कत्ल की रात का वक़ुआ सुना दिया। वो इस तरह के नसरीन गहरी नींद सोई हुई थी। उस रात रहीम साथ वाले कमरे में सोया था। नसरीन ने सही वक्त ना बताया। उसे वो आधी रात कहती थी। हुआ यूं कि उसकी आंख खुल गई। आंख वैसे ही नहीं खुल गई थी, बल्कि किसी ने उसे आहिस्ता से हिलाकर जगाया था। उसने देखा कि पलंग पर कोई बैठा है। वो उसे रहीम समझकर बड़ी तेज़ी से उठ बैठी, लेकिन वो रहीम नहीं बल्कि मकतूल था। नसरीन उछलकर पलंग से उठी और फर्श पर खड़ी हो गई। मकतूल ने उठकर उसे अपने बाजुओं में लेना चाहा और मिन्नत समाजत भी की कि वो शोर न करे। नसरीन ने बुलंद आवाज़ से कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो, फ़ौरन निकल जाओ। मकतूल को शायद पहले ही पता चल गया था कि आज रात रहीम दूसरे कमरे में सोया है। नसरीन ने मुझे बताया कि मकतूल को यकीनन मालूम था कि रहीम रात नींद की गोली खाकर सोता है और उसे कोई होश नहीं रहती। उस वक्त मकतूल नसरीन के लिए भूखा भेड़िया बना हुआ था। ये उसकी दिलेरी और जुर्रत की इंतहा थी। नसरीन ने यह वाक़या सुनाते हुए कहा कि वो अगर दौड़ती नीचे जाती और मकतूल की माँ को जगाकर बताती कि मकतूल ने उस पर दस्त दराजी की है तो माँ मकतूल ही की तरफदारी करके उसे बेगुनाह साबित कर देती और फिर नसरीन के लिए कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। लेकिन नसरीन एक शैतान के आगे हथियार डालने वाली लड़की नहीं थी। मकतूल नसरीन पर लपक लपक पड़ता था और नसरीन उससे बचने की कोशिश में कभी इधर कभी उधर होती, और इस दौरान उसने लाइट ऑन कर दी। फिर दोनों कमरों के दरमियान वाले दरवाजे तक जा पहुंची। दरवाज़ा खुला था
मकतूल ने उसे पकड़ना चाहा तो नसरीन एक कुआड़ से लगी तो ये कुआड़ पीछे दीवार से लगा और अच्छा खासा धमाका हुआ। इससे रहीम की आंख खुल गई। नसरीन बड़ी तेज़ी से उस तक पहुंची और उसे झंझोड़ा। ओ बेगैरत, नसरीन ने रोते और चिल्लाते हुए रहीम से कहा, मैं तेरी इज्जत हूँ, उठ के देख। रहीम तेज़ी से ये पूछता हुआ उठा, क्या हुआ है? नसरीन ने मकतूल का नाम लेकर कहा कि वो मरदूद मेरे पलंग चढ़ आया था। इस असना में मकतूल वहाँ से खिसका। रहीम ने शायद उसे देख लिया था। रहीम नसरीन को एक तरफ करके नसरीन वाले कमरे में गया। नसरीन रहीम के पलंग पर बैठकर और मुंह दोनों हाथों से छुपाकर ज़रा ऊंची आवाज़ में रोने लगी। इस घर में तो उसकी इज्जत भी महफूज नहीं थी। उसने मुझे बताया कि अचानक उसे ख्याल आया कि रहीम कहाँ है, कहीं मकतूल के साथ उसकी लड़ाई ना हो गई हो। वो बिदक कर उठी और दूसरे कमरे में गई। रहीम वहाँ नहीं। नसरीन बाहर निकली और सीढ़ियों की तरफ गई तो उसे रहीम ऊपर आता दिखाई दिया। वो सीढ़ियाँ चढ़ता आ रहा था। नसरीन ने उससे पूछा, कहाँ गए थे? रहीम ने कोई जवाब ना दिया और नसरीन का बाजू पकड़कर कहा, अंदर चल, और अंदर ले जाकर नसरीन को अपने साथ लिटा लिया। नसरीन मुझे ये वक़ुआ सुनाते सुनाते अचानक चुप हो गई और उसके चेहरे पर परेशानी का तासुर आ गया, जैसे उसे अचानक कोई बात याद आ गई हो और ये बात बड़ी ही खौफनाक हो। भाईजान, नसरीन ने मुझे कहा, आप ये शक तो नहीं करेंगे कि कत्ल रहीम ने किया है? वो तो वैसे ही नीचे चला गया और वापस आ गया था। मैंने अनजान और अनाड़ी बनते हुए उसे तसल्ली दी कि मैं ऐसा शक नहीं करूँगा और उसे शक ना होने दिया कि मुझे मुअम्मे का हल मिल गया है। कातिल रहीम था और उसने मकतूल का गला दबाया था। मेरे पास कोई सबूत ना था सिवाय इसके कि रहीम को जिस पर गुस्सा आता था उसका वो गला दबाने की बात करता था, लेकिन रहीम को गिरफ्तार करने के लिए इतनी सी बात काफ़ी नहीं थी, बल्कि ये कोई शहादत नहीं थी। नसरीन कह सकती थी कि उसने ऐसा कोई वाक़या सुनाया ही नहीं, ना कोई ऐसी बात की है। अब देखिए खुदावंदे ताला किस तरह मेरी मदद करता है। मैं नसरीन से कुछ और बातें पूछ रहा था और अब वो खुद ही मोहतात होकर जवाब देती थी। इतने में मेरे दफ्तर का बंद दरवाज़ा बड़ी ही ज़ोर से खुला। दोनों कुआड़ दीवारों से लगे। मैंने गुस्से से चौंक कर उधर देखा तो दरवाजे में रहीम खड़ा था और उसका बाप उसे पीछे घसीटने की कोशिश कर रहा था। मेरा गुस्सा वहीं ख़त्म हो गया। मैंने रहीम के बाप से कहा कि इसे अंदर आने दो चौधरी। रहीम मुझे गुस्से से घूरता हुआ बड़ी तेज़ी से अंदर आया और नसरीन के पास खड़ा हो गया। उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? नसरीन खड़ी हुई और जवाब दिया कि थानेदार साहब ने बुलाया था। तुम हो थानेदार? रहीम ने हाथ मेरी तरफ गुस्से से बढ़ाकर कहा, इसे तुमने बुलाया है? मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। उसने नसरीन को अपने बाजू में लिया और कहा, आओ चलें। मैंने गुस्से का ज़रा सा भी इजहार ना किया। रहीम का बाप भी अंदर आ गया था और वो रहीम को बाजू से पकड़कर बाहर घसीट रहा था। मैंने उसे मना किया लेकिन वो बाज ना आया। उसने रहीम से कहा कि थानेदार साहब कत्ल की तफ्तीश कर रहे हैं और उन्होंने नसरीन को इसी सिलसिले में बुलाया है। इसे अभी साथ ना ले जाओ। मुझे चौधरी पर गुस्सा आया कि वो रहीम को गुस्सा दिला रहा है और मैं जो इससे पूछना चाहता हूँ वो नहीं पूछ सकूँगा, लेकिन उसका निहायत अच्छा असर हुआ। रहीम पागलों के अंदाज से बड़ी ज़ोर से कुर्सी पर बैठ गया और बोला, पूछो, मुझसे पूछो। मैंने चौधरी और नसरीन को बाहर भेज दिया और दरवाज़ा बंद कर दिया। रहीम को खुश करने के लिए उसके बाप को बुरा भला कहा और ये भी कहा कि ये खामखा तुम जैसे अच्छे और शरीफ आदमी को परेशान करते हैं। तुम अपनी कुर्सी पर बैठो। रहीम ने मेरी कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, और पूछो, क्या पूछते हो? तुम ये पूछते हो कि उस हरामजादे का गला किसने दबाया है, और वो मैंने दबाया था। अब पूछो, चुप क्यों बैठ गए हो? शाबाश, मैंने कहा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। अब ये बताओ, तुमने उसका गला क्यों और किस तरह दबाया था? ये नसरीन है ना? रहीम ने कहा, ये बड़ी अच्छी लड़की है, मेरे साथ रहती है, मैं इसको कहीं नहीं जाने दूंगा, बहुत प्यार करती है। इस खबीस आदमी ने उसको तंग किया था। वो नीचे चला गया तो मैंने जाकर उसका गला दबा दिया। वो गिर पड़ा और मैं ऊपर आ गया। ये तो बहुत ही मुख्तसर बातें हैं जो मैंने लिखी हैं। उसके साथ कुछ लंबी गुफ्तगू हुई थी
और वो पागलों की तरह जवाब देता रहा और कभी कह कहा लगाकर हंसता भी था। मैंने उसे बाकायदा हिरासत में ले लिया। अब मेरे सामने दो मसले थे, एक यह कि इस जहनी माजूर मुल्जिम से इकबाली बयान किस तरह लूँ और दूसरा यह कि शहादत और सबूत किस तरह फराहम करूँ। निहायत अहम गवाह नसरीन थी जो साफ इनकार कर सकती थी कि मकतूल उसके कमरे में गया ही नहीं था। बहरहाल ये बड़ी लंबी बात है जो क़ारीन के लिए ज़रा सी भी दिलचस्पी नहीं रखती। ये मेरा काम था और उसके लिए मैंने अपने अंग्रेज़ DSP से रहनुमाई मांगी थी। अगले ही रोज़ रहीम का बाप एक हिंदू वकील को साथ लिए थाने में आ गया। इस वकील को वो ज़िला के मरकज़ी शहर से लाया था जहां सेशन कोर्ट थी। इस वकील ने कहा कि वो मुल्ज़िम का डॉक्टरी मुआयना कराना चाहता है और मालूम हुआ है कि मुल्ज़िम जहनी तौर पर माजूर है वगैरह वगैरह। मैं इस वकील को जानता था, बड़ा ही काबिल और तजर्बाकार वकील था। ये मुल्ज़िम का हक था जो ये वकील मांग रहा था। रहीम के डॉक्टरी मुआयने का इंतज़ाम किया गया, पागल खाने से पाकिस्तान तक। मैं अब आपको सीधा सेशन कोर्ट में ले जाता हूँ जहाँ रहीम के खिलाफ दफ़ा 302 कत्ल का केस चला था। सफाई के इस हिंदू वकील ने पहले ही रोज़ ही ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया कि मुल्ज़िम ज़हनी तौर पर माजूर है और ये अपने अमाल और हरकत का ज़िम्मेदार करार नहीं दिया जा सकता। उसने बड़ी लंबी चौड़ी और आलमाना बहस की और कानून के हवाले दिए। ये भी बताया कि मुल्ज़िम दिल्ली के दो मशहूर और तजर्बाकार जहनी अमराज के डॉक्टरों के ज़ेरे इलाज है और इन दोनों डॉक्टरों को कोर्ट में पेश किया जाए। कोर्ट में रहीम का रवैया और उसकी हरकत और उसके कहकहे और फिर उसके आंसू साफ बता रहे थे कि यह शख्स दिमागी तौर पर सही नहीं, लेकिन ऐसी हरकत तो होशमंद मुल्ज़िम भी कर सकते हैं। जज सिर्फ पागलाना हरकत से मुतासिर नहीं हुआ करते। रहीम के बाप ने बेटे को बचाने के लिए ख़जाने के मुंह खोल दिए थे। अगली पेशी पर वो दोनों डॉक्टरों को दिल्ली से अपने खर्चे पर ले आया। जहनी अमराज के एंग्लो इंडियन स्पेशलिस्ट को सरकारी हैसियत भी हासिल थी। उसने कोर्ट में आकर ऐसा तज्जिया पेश किया कि जज मुतासिर हो गया। दूसरे डॉक्टर ने भी उसकी तायद में अपना तज्जिया पेश किया। सेशन जज ने सरकारी तौर पर मुकर्रर किए हुए जहनी अमराज के 2 स्पेशलिस्ट डॉक्टर तलब किए और मुल्ज़िम का मुआयना उनके सुपुर्द कर दिया। अगली पेशी पर इन दोनों डॉक्टरों ने रहीम को पागल करार दे दिया। सेशन जज ने कानून के ज़रूरी तकाजे पूरे किए। चौधरी ने भी गवाह पेश कर दिए और आखिर में सेशन जज ने यह फैसला दे दिया कि मुल्ज़िम दिमागी तौर पर माजूर है और उसे पागल खाने में भेज दिया जाए। मैंने इस कहानी से ये हिस्सा हज़फ कर दिया है कि कानूनी तकाजे क्या क्या थे और वो किस तरह पूरे किए गए और मुकदमे की समाअत किस तरह हुई। ये तफसील बहुत लंबी होने के अलावा टेक्निकल भी है और क़ारीन के लिए गैर दिलचस्प भी। मैं क़ारीन की दिलचस्पी की एक और बात सुनाना चाहता हूँ। कहानी पहले ही बहुत लंबी हो गई है। रहीम को लाहौर के पागलखाने में भेज दिया गया और मेरा केस ख़त्म हो गया। मेरी कामयाबी ये थी कि मैंने कातिल को पकड़ लिया था। 14-15 साल बाद जब इस बड़े सगीर में एक खूनी इनकलाब आकर गुजर गया था और पाकिस्तान के नाम का एक नया मुल्क वजूद में आकर 11-12 साल पुराना हो चुका था और कत्ल का ये केस मेरे जहन से साफ हो गया था। रावलपिंडी की माल रोड पर मुझे एक खुशपोश और खुशवज़ा आदमी मिला और ये केस याद दिलाया। मुझे कुछ भी याद ना आया। मेरा नाम रहीम है, उसने कहा। फिर भी मुझे कुछ याद ना आया। यहाँ मैं फ़र्ज़ी नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसे मैं इखलाकी पाबंदी समझता हूँ। रहीम का असल नाम कुछ और था। फ्लैटी होटल में बैठकर रहीम ने जब इस केस की तफसीलात बयान की और ये बताया कि वो वही पागल मुल्ज़िम है जिसे लाहौर पागल खाने में भेज दिया गया था, तो मुझे याद आ गया और अब रहीम को देखा तो हैरत से मेरा मुंह खुल गया और आंखें ठहर गईं। मैंने उससे पूछा, क्या वो जहनी खराबी की एक्टिंग करता रहा था? पागल खाने में गए हुए जहनी मरीज़ कम ही ठीक होकर बाहर आया करते हैं। नहीं मलिक साहब, उसने कहा, वो एक्टिंग नहीं थी।
मैं वाकई जहनी तौर पर मरीज हो गया था और मुझे पागल करार देने वालों ने गलत फैसला नहीं दिया था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस तरह शऊर की दुनिया में वापस आया हूँ। माहिर नफ्सियात बताते हैं कि जहन एक बहुत बड़ी कुव्वत है। जहन इंसान को तबाही की खाइयों में फेंक सकता है और जहन ही इन खाइयों से निकालने की ताकत रखता है। मैं रहीम की दास्तान मुख्तसरन सुना देता हूँ, फिर देखें कि जहन क्या क्या करिश्मे दिखाता है। 2.5-3 साल की उम्र में रहीम ममता से महरूम हुआ। वो रोता था और माँ को याद करता था। बाप ने दूसरी शादी कर ली और इस सुतीली माँ ने रहीम पर जबर और तशद्दुद शुरू कर दिया। बाप का रवैया भी मुशफिकाना ना रहा। 11-12 साल उम्र तक रहीम को अच्छी तरह याद था कि उस पर क्या क्या जुल्म सितम हुए। उसके बाद उसे बातें ख्वाब की तरह याद थीं। फिर जूं जूं उसकी उम्र आगे बढ़ती गई, उसका रवैया कुछ और ही होता गया। उसने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि उसे कोई एहसास नहीं था कि वो कोई गलत हरकत कर रहा है। मसलन दानिस्ता 1-2 बर्तन तोड़कर वो हंसा करता था। इस तरह वो जहनी मरीज होता चला गया। उसे इतना ही याद था कि वो अजियत सी महसूस करता था जिससे उसके आंसू निकल आते थे और फिर ख्यालों ही ख्यालों में कोई ऐसी खुशगवार तस्वीर सामने आ जाती कि वो हंसना शुरू कर देता। इसके बाद उसे कोई बात याद नहीं आ रही थी। बहुत कोशिश करके उसने 1-2 बातें मुझे सुनाई, लेकिन ये भी कहा कि वो ख्वाब समझता है। उसे बिल्कुल याद नहीं था कि नसरीन के साथ उसकी शादी हुई थी। फिर उसे याद आने लगा कि ये लड़की इससे मोहब्बत और प्यार करती थी। यहाँ उसे कुछ बातें याद आने लगीं, जिसका मतलब ये है कि उसे ममता या प्यार वापस मिल रहा था जो उसे नसरीन दे रही थी। उसने कहा कि अब वो किसी किसी वक्त थोड़ी सी देर के लिए बेदार हो जाता था, या यूं कह लें कि वो शऊर में आ जाता था, लेकिन फिर दुनिया तारीक हो जाती थी। वो बेदार उस रात हुआ जिस रात उसने मकतूल को कत्ल किया था। उसने कहा कि ऐसा महसूस किया जैसे किसी ने बड़ी ज़ोर से धक्का देकर उसे अंधेरे से उजाले में फेंक दिया हो। उसने अपना तजिया यूं सुनाया कि नसरीन ने उसे झंझोड़कर जगाया और कहा, ओ बेगैरत, ये था वो झटका जिसने उसे जहनी तौर पर बेदार कर दिया। ये नसरीन के प्यार का और उसके इशार का करिश्मा था। उसे अच्छी तरह याद था कि वो मकतूल के पीछे दौड़ता हुआ सीढ़ियाँ उतरा। मकतूल अभी आखिरी सीढ़ी से नीचे उतर ही रहा था कि रहीम ने पीछे से उसकी गर्दन दोनों हाथों में लेकर दबा ली और उस वक्त छोड़ी जब वो मर चुका था। उसे मारकर रहीम ऊपर गया तो वो पूरी तरह होश व हवास में आ चुका था। उसी का नतीजा था कि उसने पहली बार नसरीन को अपने साथ पलंग पर लिटाया। मेरे बुलावे पर नसरीन रहीम को सोता छोड़कर चौधरी के साथ थाने आ गई थी। रहीम ने सुनाया कि वह जागा और देखा नसरीन वहाँ नहीं है। नीचे गया तो सुतीली माँ ने उसे बताया कि नसरीन थाने गई है। रहीम बड़े गुस्से से थाने जा पहुँचा और मेरे सामने आन खड़ा हुआ। उसने हंसते हुए एतराफ़ किया कि जब वो थाने मेरे साथ बातें कर रहा था तो उस वक्त उसकी जहनी खराबी फिर बेदार हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादातर एक्टिंग कर रहा था। उसे कोई अफसोस नहीं था कि उसने मकतूल को कत्ल कर दिया है। वो पागल खाने में दाखिल करा दिया गया। वहाँ उसने पागलों को देखा तो उसे अफसोस सा आने लगा कि कैसे कैसे जवान आदमी अंदर पड़े तबाह हो रहे हैं। उससे इसमें मज़ीद बेदारी होने लगी, लेकिन असल काम उसके बाप ने किया। उसने पागल खाने के इंचार्ज और 2 डॉक्टरों को मुंह मांगे पैसे देकर बेटे को ठीक करा लिया और फिर पागल खाने से 8-9 महीने बाद खारिज भी करवा लिया। वो वापस अपने घर गया तो नसरीन अपने माँ बाप के घर थी। वो तो मातम की कैफियत में थी। रहीम को पता चला कि लोग उसके माँ बाप से कहते रहे हैं कि पागल खाने से कभी कोई पागल ठीक होकर नहीं आया, बेटी की शादी कर दो, लेकिन नसरीन ने साफ इनकार कर दिया था। रहीम पहुंच गया और नसरीन को अपने घर ले आया। अब वो सही मानों में खावंद था और नसरीन को बीवी समझता था। इसके चंद महीनों बाद मुल्क तकसीम हुआ, खून खराबा हुआ, लेकिन चौधरी अपने ख़ानदान को पहले ही निकाल कर ले आया था। पाकिस्तान में रहीम अपने वालिदैन से अलग हो गया था और यहाँ इसे
اتنی زیادہ زمین مل گئی کہ وہ پہلے سے زیادہ اچھی حیثیت کا مالک ہو گیا۔ اللہ نے نسرین کی نیکی کا اجر دیا اور انہیں 3 بیٹے اور 1 بیٹی عطا کی۔